Good morning, class. Welcome to our computer online classes. So last class we studied many things, isn't it? Last class we studied a short introduction about computer system and what are the two computer systems? Hardware and software. So today we will study more about hardware and software. Okay. So here the definition of hardware is given. You have to learn it. So all the physical devices of a computer that we can touch and see are called hardware. ठीक है, जितने भी फिजिकल डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, ऑल द फिजिकल डिवाइसेस मीन्स सारे फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर जो हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं. ओके, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच and see are called hardware. Okay, so they can be divided into two categories according to their function. ठीक है, और ये जो है फिजिकल डिवाइसेस जो है दो में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. लाइक डिवाइस and here example is given. Let me explain you. So this is input device. Okay, this is input device. So these are used to enter input to the computer. You can see here keyboard is there, mouse is there and mic is there. Okay, so what does keyboard and mouse do? Keyboard और mouse से जो है हम input को data को enter करते हैं, isn't it? With the help of keyboard and mouse we enter input to the computer. Okay, processing device, these are used to process the input device. So this is processing device. Okay, CPU is the processing device. These are used to process the input received. तो जो इनपुट जो है इनपुट डिवाइस जो इनपुट देता है उस इनपुट को कौन रिसीव करता है? प्रोसेसिंग डिवाइस रिसीव करता है. ओके, सो दीज आर यूज्ड टू प्रोसेस द इनपुट रिसीव. तो जो भी इनपुट रिसीव्ड हुआ रहता है उसको वो प्रोसेस भी करता है. ठीक है, so and one thing I want to say class, I don't know that at the last of the video this question is there or not there, but I am telling you. Okay, what is CPU? Okay, CPU का बता रही हूँ. Like in your body part, if your brain will not be there, will your body will be able to work properly? No. अगर आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा सही से तो आपकी बॉडी सही से वर्क नहीं करेगी. उसी तरह से पूरे कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू होता है. सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ओके, सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम. If the question comes in your exam or in your question which you will get after completing this chapter, so you should know the answer of this question. That CPU is the brain of computer. It can ask in many form. This question can be asked in fill up also. This question can be asked in the form of question answer also. Okay. So if anybody will ask you what is the brain of computer, the answer is CPU is the brain of computer. Okay. If CPU will not be there, then your computer system won't be able to work in a proper manner. Okay. So now next we will study of output device. Okay, so these display the result of computer processing. Last class also I told you output device क्या करता है कि जो इनपुट जो है यूजर जो सिस्टम को देता है, जब वो प्रोसेस होके जब रिजल्ट उसका निकलता है, जो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज आउटपुट डिवाइस. Let me give you one more example. Last class also I gave you one example of input process and output device. Today also I am giving you one example about input process and output device. Like in a classroom, okay, in a classroom, your teacher, ठीक है, your teacher, she is input. Why? क्योंकि टीचर आपकी जो भी पढ़ाती है, ठीक है, जो भी पढ़ाती है
वो आपको सारा इनपुट देती है, ठीक है। योर टीचर इज गिविंग यू इनपुट, ठीक है, योर टीचर इज गिविंग यू इनपुट। और फिर जब आपका टेस्ट या एग्जाम आता है, ठीक है, उस टाइम जो आप बीच में जो आपका स्टडी प्रोसेस होता है, ठीक है, इनपुट जो आपकी टीचर जो भी टॉपिक एक्सप्लेन की, ठीक है, टीचर ने अपना इनपुट दे दिया आपको, ठीक है, और इनपुट मिलने के बाद आप जो है घर पे जाके अगर उसको जो है प्रॉपर वे में स्टडी कर रहे हो, दैट इज योर प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट डे टेस्ट होता है या फिर टीचर जो है आपकी क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट डे इफ शी इज आस्किंग यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, तो जो बच्चे उसका आंसर बताते हैं, ठीक है, जो वो क्या है, वो आपका रिजल्ट है, वो आउटपुट है, ठीक है। जैसे आपके टीचर आपको टॉपिक पढ़ाई, ओके, शी टॉट यू ए टॉपिक, दैट इज इनपुट डिवाइस, ओके, एंड योर स्टडी प्रोसेस, जो आपका स्टडी प्रोसेस है, दैट इज प्रोसेसिंग डिवाइस, ओके। और एग्जाम में जो आप नंबर्स देते हो, ओके, दैट इज आउटपुट डिवाइस, ठीक है, जो आपका नंबर्स है, जो आपका रिजल्ट निकल के आता है, ओके, दैट इज आउटपुट डिवाइस। सो नाउ आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस डिवाइस। एंड नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस, ओके। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर इनपुट एंड आउटपुट फॉर लेटर यूज, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस जो है इनपुट और आउटपुट को स्टोर करता है फॉर लेटर यूज, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। So software is a set of instruction that tells the computer how to perform a specific task. सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो क्या करता है, दैट टेल्स द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को जो है बताता है हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, ओके। सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ प्रोग्राम, ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर डज द प्रोसेसिंग वर्क फॉर द कंप्यूटर, ओके। व्हाट डज सॉफ्टवेयर डू, सॉफ्टवेयर डज द प्रोसेसिंग वर्क फॉर द कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर जो प्रोसेसिंग वर्क करता है किसके लिए, फॉर कंप्यूटर, ओके। इट रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर, सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो जो है इनपुट को रिसीव करता है, किससे रिसीव करता है, यूजर से इनपुट रिसीव करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, ओके। एंड लास्ट what it do and turns it into the output, फिर जो रिजल्ट आता है it turns into the output which we get after the working, okay. So there are different types of software used for different work, ठीक है। तो बहुत there are different types of, बहुत सारे टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, ओके। तो सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ओके। सॉफ्टवेयर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। दे आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? System software is software that manages and controls computer hardware. System software क्या करता है, जो मैनेज और कंट्रोल करता है किसको, कंप्यूटर हार्डवेयर को, ओके। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर, ओके। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली अलाउज डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टू वर्क टुगेदर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउ करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को एक साथ वर्क करने में, ओके। विदाउट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट ए सिंगल यूनिट, और बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर जो है एक सिंगल यूनिट भी ऑपरेट नहीं कर सकता है। सो हियर सम एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर गिवन, यू हैव टू लर्न दिस एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो विंडोज, UBUN2 and Mac OS are few examples of system software. So these are some examples of system software, you have to learn it, okay. At least any two you have to learn the examples of system software.
So understood about system software? Any doubt up to here? Now next we will move to application software. Okay, next is application software. So application software is designed to perform a specific task. Application software क्या है? Application software is designed to perform a specific task. Application software को डिजाइन किया गया है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. इट हेल्प्स द यूजर एज ए टूल फॉर इजी ऑपरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क. ये क्या करता है? इट हेल्प द यूजर, ये यूजर को की हेल्प करता है एज ए टूल, ठीक है, यूजर की हेल्प करता है एज ए टूल फॉर इजी ऑपरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क. ठीक है, जो भी हम ऑपरेशन जो भी हम टास्क हम करते हैं, ठीक है, उसको इजी वे में करने के लिए इट हेल्प्स द यूजर. ओके, so there are some examples of application software, that is MS Word, MS PowerPoint, KitPix, Picasa, Windows Media Player. So these are some examples of application software that you have to learn it. Okay, MS Word, MS PowerPoint, KitPix, Picasa, Windows Media Player. These are some examples of application software. Okay, now characteristics of computer. Okay, a computer is an electronic machine. It has following characters. Speed. Computer works at great speed. It can do billions of calculations in few seconds. Speed. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर वर्क्स एट ए ग्रेट स्पीड. कंप्यूटर जो है एक ग्रेट स्पीड पे वर्क करता है और इट कैन डू बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, और ये जो है बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन फ्यू सेकेंड्स में कर सकता है. मेमोरी. ओके, नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज मेमोरी. कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेफली इन इट्स मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज. कंप्यूटर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज. दैट इज वाई दे आर सो यूजफुल. इसीलिए जो है मेमोरी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. ओके, बिकॉज इट कैन स्टोर more data for our future use. Next is accuracy. Computer is a very accurate machine. Computer जो कोई भी चीज बहुत accurate देता है. Diligence. Computers can do the same job again and again without getting tired. जैसे हम क्या है, कोई भी काम एक काम अगर जो है हम like you have got a work, ठीक है, आपको जो चैप्टर 1 लिखना है, तो चैप्टर 1 अगर आपकी टीचर बोलेगी कि जो इसको 10 बार लिखो, तो आप 1 से 2 बार करोगे, 2 से बाद तीसरी बार करते करते आप बहुत बोर हो जाओगे, isn't it? बट कंप्यूटर कैन डू द सेम जॉब. कंप्यूटर एक ही जो है वर्क को बार बार करता है, वो भी बिना टायर्ड या बोर हुए. ओके, वर्सटैलिटी. कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब. और कंप्यूटर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब कर सकता है. मल्टीटास्किंग. द कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट जॉब्स एट सेम टाइम. कंप्यूटर एक बार में ढेर सारे वर्क कर सकता है. ओके, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर्स आर मशीन्स. दे हैव टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन फॉर ईच स्टेप ऑपरेशन. So here some limitations of computers are given. You just go through it. Okay, there is no much use of these all points because you are in class 1 only. Okay, so now whatever the questions are asked, okay, whatever the questions are asked, see the video very carefully and answer each and every question. Okay, I have heard many students are saying, ma'am, please tell me all the answers. If all the answers, if teacher will say you, then what is the use of giving the video? Okay, so if watch the video very carefully. जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो आपकी वीडियो में से ही पूछे जाते हैं. ओके, एक बार अगर नहीं आपको आ रहा है, वॉच द वीडियो 1 more time. ओके, एंड आपके पास जो है 4 बजे तक का टाइम है. यू गेट द टाइम अप टू 4 PM. बिफोर दैट एनी टाइम यू कैन सबमिट
So watch the video very carefully and answer all the questions and do well. Okay? So have a nice day, students. Do your homework well. Bye.